Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद कमल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव। राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं कमल सक्सेना। Domestic equity benchmarks rally more than 1% amid positive global cues and encouraging reports of COVID-19 vaccine trials. The rupee appreciates 56 paise against the dollar, tracking weakness in US currency. And Brent crude prices rise above $42 per barrel following sharp fall in oil stockpiles. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कोविड-19 के वैक्सीन परीक्षण की रिपोर्ट उत्साहजनक रहने के बीच घरेलू बाजार सूचकांक 1% से अधिक ही बढ़त में रहे। डॉलर में कमजोरी के चलते रुपया डॉलर के मुकाबले 56 पैसे मजबूत हुआ और कच्चे तेल के भंडार में भारी गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड का मूल्य $42 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। कोविड-19 के वैक्सीन के ट्रायल उत्साहजनक रहने के बाद वैश्विक बाजारों में आई मजबूती के बीच घरेलू शेयर बाजारों में व्यापक खरीदारी हुई और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक तेजी में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स दिन में एक समय 600 अंकों का उछाल दर्ज करने के बाद कुल 1.21% की तेजी से 429 अंक बढ़कर 35,844 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.17% की वृद्धि से 122 अंक बढ़कर 10,552 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.04% की वृद्धि पर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक 0.92% की बढ़त में रहा। At the stock markets, equity benchmarks today rallied more than 1% on widespread buying amid a broad up move in global markets following an encouraging COVID-19 vaccine trials. After soaring 600 points during the session, the 30-share index Sensex settled 429 points or 1.2% higher at 35,844. The NSE Nifty surged 122 points or 1.2% to close at 10,552. Broader indices at BSE also appreciated. Mid-cap jumped 1.0% up while small cap added 0.9%. Mahindra & Mahindra was the top gainer in the Sensex pack, jumping around 6%, followed by Titan, HCL Tech, Tata Steel, Infosys and TCS. But Axis Bank, HUL, Kotak Bank and Bharti Airtel were among the laggards. Experts said market rallied, tracking positive Asian pairs on news that Germany's BioNTech and US pharmaceutical giant Pfizer reported positive preliminary results from a joint project for a potential coronavirus vaccine. Further, positive factory output data across economies also boosted global investors' risk appetite. क्या कहेंगे आप राजीव? हम कल भी 500 अंकों की तेजी आई और आज 400 अंकों से अधिक का उछाल आया है। तो बाजार में जो हम एक उत्साह देख रहे हैं, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? इंटरनेशनल जो तेजी है उसी का अनुसरण है या कुछ डोमेस्टिक लेवल पर भी इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक रिवाइवल के हैं वो भी बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, प्राइमरीली जो ड्राइवर मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का ड्राइवर है वो है लिक्विडिटी। अगर आप देखेंगे बाजार ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी और सेंट्रल बैंक ने पैसा पंप करा है
उसकी वजह से सारी मार्केट जो इक्विटी मार्केट वो परफॉर्म बेटर कर रही है बिकॉज ऑफ द फ्रेश लिक्विडिटी गोइंग इनटू देम. बट another big reason why we are seeing a rally in the market is that some indications are that the pent up demand after the lockdown, some of the sectors have seen a sudden surge in demand. Like in case of tractor sales, they were higher in case of some companies. The sales of some other things which are smaller unit can be sold in smaller unit have been higher in semi-rural and semi-urban areas. So it is both the liquidity and now some of indications are that the consumers have returned in some parts of the country much faster as compared to what was expected a couple of weeks back. And there is some more data about like GST collection, which was nearly 91,000 crore rupees for March, and manufacturing PMI was 47.2 in June, and there in the last quarter, which ended on June 30th of June, income tax and corporation tax was about 77% of the last figure for the same quarter last year. And car sales have picked up at least in June when we compare it with the same figures in the month of May. So assimilating all this data, what does it suggest for the economic recovery? Well, as I said, the rural economy probably has shown resilience because that's the part of the country, thankfully, where the exposure of COVID did not spread. So I would suggest, but these numbers have to be further finally, probably the numbers from July, the month we just entered, when they are released, those are the numbers which will probably indicate towards more if there is a revival, because there is an element of pent-up demand which comes up. We have to see a normalized consumption pattern to figure out what exactly is happening on the ground. If the normal consumption, which probably the month of July will be able to show a better figure, then we could say with certainty, yes, things are returning back to normal. I mean, the question is at what pace, whether the pace is same or not. राजीव, जैसा आप कह रहे हैं कि पेंटअप डिमांड भी है जिसकी वजह से शायद हम अभी जो एक स्पर्ट देख रहे हैं काफी इंडिकेटर्स में, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर हम देखें जून में तो वो फरवरी से भी कुछ अधिक आई हैं. हालांकि उसमें भी पेंटअप डिमांड का ही एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि डिजिटलाइजेशन जो है, जो एक मुहिम चल रही थी सरकार की काफी समय से, उसको एक बढ़ावा मिलेगा इस पूरे प्रक्रिया से, कोविड प्रक्रिया से? जी, थोड़ा सा सोनू जी जैसा आपने कहा कि मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा असर है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा फियर फैक्टर रहा है कि पैसे को के लेन देन में, फिजिकल जो पैसे को एक दूसरे से लेने में, तो वो एक फैक्टर रहा है डिजिटल पेमेंट्स का. और आई थिंक दैट प्रॉब्ली इज वन ऑफ द परमानेंट बिहेवियरल चेंज विच विल रिमेन देयर. शायद नंबर थोड़े ऊपर नीचे होते रहे, but this change is there to stay. तो और कौन से ऐसे आपको लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है उससे और कौन से ऐसे चेंजेस होंगे? क्या जो वर्क फ्रॉम होम है आपको लगता है कि वो ज्यादा बढ़ेगा? क्या इसका रियल एस्टेट पर कुछ असर हो सकता है? कौन से आप लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस देख रहे हैं? मेरे को लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग चेंज में जो होगा वो होगा एक्चुअली डिमांड फॉर इंश्योरेंस जो है वो एक थोड़ा सा बढ़ेगी. वर्क फ्रॉम होम शायद उतना ना हो, मतलब सस्टेनेबल बेसिस पे, या इतना ज्यादा. हाँ, शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट पे पैसा में इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है और पड़ भी रहा है, स्पेशली द कमर्शियल प्रॉपर्टी पे. बट आई डोंट थिंक सो लॉन्ग टर्म में रेजिडेंशियल वगैरह पे इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा. लेकिन बिहेवियरल चेंजेस में मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की डिमांड एक ऐसा एरिया है जो कि आई थिंक दैट विल चेंज फॉर लॉन्गर पीरियड. And something of interest is that there has been an ongoing tension at the LAC with China, and the situation is still tense. But the market seems to have shrugged it off and showing little signs of nervousness on it. So what do you have to say on it here? Well, I think market probably on the day when the news came in was slightly worried about it, but after that it has not. I mean, like, we all know that
probably market is now feeling that this okay, fair enough. This tension has, but it will be managed. It's not going to go out of control because neither country would like to go for a serious confrontation. राजीव, चीन पर ही अगर हम आगे बात करें तो एक तरह से कहें तो चीन विरोधी एक जो एक सेंटिमेंट चल रहा है। 59 चाइनीज एप्स को बैन किया गया है। हाईवे प्रोजेक्ट्स में जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि उसमें हम चाइनीज कंपनीज को कंसिडर नहीं करेंगे। टेलीकॉम में भी हम देख रहे हैं कि चाइनीज कंपनीज को सिक्योरिटी इश्यूज, डेटा थेफ्ट के कारण उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या लगता है, क्या जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, चाइनीज इंपोर्ट्स के सब्स्टिट्यूशन की भी जो बात की जा रही है, उससे क्या भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा? किन किन सेक्टर्स में आप कोई पोटेंशियल देखते हैं? देखिए, जो अगर आप मैक्सिमम इंपोर्ट देखें, केमिकल्स है, हेवी मशीनरी है, उसमें काफी इंपोर्ट्स होते हैं। जहां तक पहला पार्ट है आपके प्रश्न का कि बढ़ावा मिलेगा, डेफिनेटली बढ़ावा मिलेगा, बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप ओवरनाइट किसी इंडस्ट्री में कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर सकते, स्पेशली द वन जिसमें वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड है और हैवी मशीनरी इंपोर्ट या का एलिमेंट है। सो ओवर अ लॉन्गर टाइम तो इट्स वेरी क्लियर कि ट्रेंड्स विल चेंज टुवर्ड्स जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। जैसे कि देखा, कुछ केमिकल कंपनीज के, कुछ स्टील कंपनीज के जो भाव बढ़े हैं वो इसीलिए बढ़े हैं कि वेल एंटिसिपेशन है कि जो डंपिंग चाइना करता था वो अब शायद नहीं हो पाएगी इतनी आसानी से। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म दिस थिंग। उसमें से कितनी, कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी उसका फायदा उठा पाती, डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रांग वी आर फंडामेंटली इन दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आपको लगता है कि इस जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रांजिशन पीरियड होगा, उसमें प्राइसेस ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स पर दिखाई दे रहा है, तो प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि वो चाइना में चीज जो है मिलती है तो बाकी जगह मिलती नहीं है। कुछ चीज जगह कुछ मार्जिन थोड़े जरूर कंपेरेट होंगे किसी जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस टू दी कंज्यूमर वुड। हाँ, कुछ सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, सम एसेसरीज हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, उनमें थोड़ी सी स्पाइक आ सकती है, बट देन अगेन वो दूसरी जगह से इम्पोर्ट हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंस। यस, शॉर्ट टर्म 2-3 क्वार्टर में शायद हो सकता है वो डिस्टर्बेंस रहे as new sources of supplies are emerge. So this rally was almost led by financial stocks and banking stocks. So do you think that leaders or sectoral leaders which are leading this rally are changing in very recently? No, this rally, if you look at it, was largely led by Reliance Industries. And if you look, and that too because they were able to raise money in a tough global environment. So to me, I think the rally was largely led by digital numbers of one particular company. As far as the financials and other concerned, that will face tough times, and the companies with a large balance sheet in case of financials are the ones who are going to get benefit because they are going to get the market share as compared to companies where others are not available. The size of the balance sheet is small because those financial is one area where probably there are more troubles are likely to be there, because once the moratorium end, let's see what then happens and how the situation emerges from there. So financial is one area where I probably would be more cautious as compared to others. राजीव, आपने अभी स्टिमुलस की बात की थी कि स्टिमुलस जो विश्व भर के सेंट्रल बैंक्स ने दिया है उसकी वजह से लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी जो बढ़ी है, वो रैली का एक प्रमुख कारण है। सो आपको क्या लगता है कि भारत एक क्या आकर्षक गंतव्य बने रहेगा? भारत की बाकी देशों की तुलना में एफपीआई का कितना भारत की तरफ झुकाव है?
देखिए, भारत का के प्रति जो झुकाव है वो ऐसा नहीं कह सकते कि इस स्टैंड अलोन बेसिस पे इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, बिकॉज हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स शायद आउट परफॉर्म कर सकता है अगर हम इंडेक्स लेवल पे कंपेयर करें, क्योंकि हमारे इंडेक्स की बनावटी ऐसी है कि उसमें आईटी कंपनीज है जिन पे बहुत कम इफेक्ट पड़ा है काम पे। बट कितना एफपीआई पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं वो आने वाले टाइम में जब अर्निंग सीजन आएगा, उस अर्निंग सीजन जो अगले 10 दिन में शुरू होने वाला है उसमें कैसे चीजें फॉर्मुलेट होती हैं वो देखना जरूरी होगा। वो उसके बाद कितना पैसा आता है कितना नहीं आता, हाँ कुछ शेयर तो इंडिया को बाय डिफॉल्ट मिलना ही है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ सर्टेन ग्लोबल इंडिसीज एंड बिकॉज ऑफ विच जो हमारे यहाँ पैसा कुछ आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट आता है नहीं आता वो देखना पड़ेगा। और फिर उसमें एक और चीज है कि वो आएगा टॉप कंपनीज में, जो मिड एंड स्मॉल कैप है मुझे नहीं लगता उनमें भी बहुत ज्यादा पैसा, इवन आप देखें सब एनालिसिस के बाद भी बहुत बड़ा पैसा आए। राजीव, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले श्रोताओं लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। Welcome to the program after the break. Rajiv ji, there is another development which has happened. Morgan Stanley Capital International has deferred India's weightage revision in global indexes. Do you think it is going to affect foreign funds inflows for some time to come? Well, some of the stocks which have seen the weightages, with their weightage increases, are surely are going to see some inflows. And there are some where there has been minor decline also. So I don't know whether overall it's going to have any major impact. But yeah, for certain stocks, yes, there is going to be money getting pumped in them. But I don't think so. Even in that case, that is anything which market needs. Market is largely priced into that, and that is why if you look at the stocks where the increase in weightage has happened, have done extremely well in the last few months in anticipation of these changes. राजीव, सेक्टर वाइज अगर हम कहें तो अभी जो लॉकडाउन का स्टेज है धीरे धीरे और ज्यादा उसको खोला जा रहा है, और हम ये भी सुन रहे हैं कि माइग्रेंट लेबरर्स वापस आ रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि जो अब क्वार्टर शुरू हुआ है इसमें कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हम रिवाइवल ज्यादा तेज गति से देखेंगे? चांसेस हैं कि हम देखेंगे कि एक तो ऑटो क्षेत्र के कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे टू व्हीलर्स हैं उसमें देख लेंगे, क्योंकि दूसरा जो रिवाइवल जो शायद लगता है वो है जो भी वो सेक्टर जो कि बेसिक कंजम्पशन में इन्वॉल्व है वो प्रॉब्ली और लॉजिस्टिक्स की वजह से जो थोड़े से फंसे हुए थे उनमें शायद थोड़ा सा आप देखेंगे। प्रॉब्ली जो कैपिटल गुड्स के कुछ सेगमेंट हैं जो कि मेंटेनेंस फंक्शन में काम करते हैं, वो एक क्षेत्र है जहां पे प्रॉब्लम शायद ज्यादा तेजी देखें शॉर्ट टर्म। And with liquidity reigning in the market, do you want to take a call? What will be the upper range for this market and what will be the bottom? Well, that would probably, you see, when liquidity is pushing anything up, it's probably not the best thing to do, because if you look at it historically, and especially given the fact that our index are formulated in a manner which have a clear bias towards certain large companies, out of which majority of them don't need capital, I would not like to hazard that guess at this sort of time. Again, liquidity driven things, it is like, as a trader, you just ride the wave till the time it's happening and keep on increasing your trailing stop losses and just take the advantage of the rising move. So to me, I think that is not one area where
even one should try even. राजीव, एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए जैसे कमल हैं या मैं हूं, हमारे लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी इस अनसर्टन टाइम में? देखिए, मेरे हमेशा ये स्टैंड रहा है कि जो SIP लोग करते थे वो उसको कंटिन्यू करें। अगर आप डायरेक्टली बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिजनेस देखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। कभी ये नहीं करें कि शेयर 100 रुपए का था 10 रुपए का हो गया या 20 का हो गया तो ये इसलिए अच्छा हो गया। तो हमेशा फोकस करें कि कंपनी किस बिजनेस में, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या तो आप अच्छे से खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। अदरवाइज प्लीज स्टिक विद योर SIP और इन आइदर इन इंडेक्स फंड और अ फंड जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो के ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न देता है। राजीव, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डाल के आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एशियाई शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन वृद्धि दर्ज हुई। अमेरिका में आज जारी होने वाले रोजगार से जुड़े आंकड़ों में रिकॉर्ड सुधार की उम्मीद के बल पर और कोरोना वायरस के वैक्सीन के ट्रायल उत्साहजनक रहने से निवेशकों में भी उत्साह था। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि बने रहने के बावजूद एशियाई शेयर बाजारों में 2 सप्ताह से अधिक की अवधि की सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त दर्ज हुई। ये वृद्धि उस खबर के बल पर आई कि फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक द्वारा जांचे जा रहे वैक्सीन के शुरुआती मानव परीक्षण उत्साहजनक रहे हैं। हांगकांग का हैंगसेंग 2.9% के उछाल में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 2.1% की बढ़त दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.4% की वृद्धि में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.6% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 1.4% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 1.7% के उछाल पर था। And on Wall Street, stocks closed higher yesterday as increasing optimism for a safe and effective COVID-19 vaccine eased concerns that another round of business lockdowns was likely despite a climb in coronavirus cases in the United States. The S&P 500 climbed 0.5% and the Nasdaq Composite advanced 1%, but the Dow Jones slipped 0.3%. राजीव, अगर हम देखें तो नास्डैक लगभग रिकॉर्ड लेवल्स के करीब पहुंचा हुआ है। हालांकि जो कोविड-19 की सिचुएशन, केसेस की अभी भी संख्या बढ़ी रही है। तो क्या लगता है आपको, आगे चलकर आप क्या देखते हैं कि जो रिसेशन की बात हो रही है, IMF ने जो रिसेशन के अनुमान दिए हैं, क्या वो शॉर्ट लिव्ड रहेगी? कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमको डीलिंग करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ मार्केट और इकोनॉमी को। अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें इकोनॉमी ग्लोबली तो वो अच्छी नहीं है। उसके बाद भी नैस्डैक तो एक स्पेसिफिक केस है जिसका रीजन है कि उसमें गूगल, फेसबुक, जो भी डिजिटल कंपनीज है जिनकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन डिजिटली होती है, एंड विंडोज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है जिनकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन डिजिटल होती है, उनकी डिमांड बढ़ी है और बिकॉज ऑफ विच इंडेक्स लाइक नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा ग्लोबली बाकी सारे इंडेक्स को। सो आई थिंक ग्लोबली ऐसा एक फेज आएगा जहां पे आपको जो ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो इंडेक्स है उसमें डाइवर्जेंस दिखेगा और प्रॉब्ली वो हिंदुस्तान में तो 2019 में भी हुआ था। आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड ग्लोबली। सो दैट इज द रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली इंडेक्स फंड जो है उसमें SIP कर लें, वो बेटर रहेगा। Rajiv ji, we are seeing US jobs data is expected to be a record one. What does it say about the economic recovery, particularly in the US, of course? Well, see, again, in case of US, what has happened is there has been partial opening up and consumers have been rushing. If you look at the absolute number of job numbers, of course there is a decline, there is an issue. The other number which has surprised everyone is that the home price index have not fallen in US much. So that clearly shows that probably the liquidity which has been pumped
has been able to help people out there and at this point of time. And secondly, see, this problem is like 4 or 5 months old now only. Probably the real impact of this will start happening, would be visible only towards the end of the year when companies, again start re-emerging relooking their business models. And some of the companies, probably one number which one need to look at is how many bankruptcies get Chapter 11 bankruptcies or one get filed in US. So those things are going to take this data numbers are going to come after time. But because of the liquidity, probably market globally will not show what is happening on the ground. So there's going to be a divergence on ground. Things are not coming good. But at the same time, because central banks have decided that, any problem, our solution, the vaccine to the problem of economy is liquidity, so they will pump in more money. So there will be a phase, we're going to see a divergence, and then probably it's going to perplex most of us. आइए अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 56 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 75 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। रुपये में यह मजबूती डॉलर में गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में तेजी के चलते आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती और डॉलर में नरमी से रुपये को समर्थन मिला। इसके अलावा फाइजर द्वारा वैक्सीन परीक्षण के परिणाम उत्साहजनक रहने की खबर देने के बाद निवेशकों की धारणा मजबूत हो गई। And in the international market, crude oil prices today rose as a sharp drop in oil stockpiles outweighed concerns that a spike in U.S. coronavirus infections and revived lockdown measures in California could stall a recovery in fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $42.40 per barrel, while U.S. crude prices were at $40.10 per barrel. राजीव, आप क्या कहेंगे रुपए में जो हम तेजी देख रहे हैं, ऑयल में एक स्टेबिलिटी है जो प्राइसेस में 40-42, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और फॉरेक्स रिजर्व्स जो $500 बिलियन पर पहुंच गए हैं, वो भी एक समर्थन देता है रुपए को। जो आपने रीजन बताए जैसे मैं कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी एक रीजन है, और जो आपने फैक्टर बताया दैट इज यस कि इतनी लिक्विडिटी है कि वो हर क्रॉस इमर्जिंग मार्केट जा रही है। जो आपने रिजर्व का फैक्टर बताया, यस दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन। प्रॉब्ली थोड़े टाइम के लिए डॉलर ग्लोबली, बिकॉज लिक्विडिटी सबसे ज्यादा वहां आ रही है, वो मदर मार्केट से ही आ रही है। सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू सी एसेट प्राइस गेटिंग रिफ्लेटेड much more sharply in emerging markets. सोने पे भी एक नजर डाल लेते हैं। रुपए में मजबूती के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 488 रुपए कम होकर 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 1,168 रुपए की गिरावट से 50,326 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बिना किसी खास बदलाव के $1,769.40 प्रति आउंस पर और चांदी $17.90 प्रति आउंस पर थी। राजीव, पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो सोने में 57% की बढ़त आई है और सेंसेक्स 6% गिरा है। तो आपको लगता है अभी एसेट क्लासेस में शायद सोना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है? उसमें से थोड़ी जो तेजी आपने जो आंकड़े बताया उसमें से लार्जली 1 साल में आई है, और परसेंटेज वाइज। और अगर आप गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो हमेशा एक स्पाइक के साथ आता है और उसके बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर आ जाता है। प्रॉब्लम थोड़े टाइम तक गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी अर्जेंटीन की है, और जो लिक्विडिटी की बात हम बार बार करते हैं उसमें से कुछ पैसा जाएगा, गोल्ड के अंदर भी जाएगा, बिकॉज दैट देयर लार्ज नंबर ऑफ हेज फंड्स एंड फंड्स विच इन्वेस्ट। जी राजीव, आई एम अफ्रेड समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic equity benchmarks rally more than 1% amid positive global cues and encouraging reports of COVID-19 vaccine trials. The rupee appreciates 56 paise against the dollar, tracking weakness in the US currency, and Brent crude prices rise above $42 a barrel following a sharp fall in oil stockpiles. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.
बात